हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स बेसिकली वो सिंबल्स होते हैं जो कि कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उन्हें कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। यहाँ पे आपको 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट इज़ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, बिटवाइज एंड स्पेशल ऑपरेटर। तो फर्स्ट जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में हम पढ़ेंगे। जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन मीन्स यूज फॉर रिमाइंडर। ये सारे सिंबल्स और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। सेकेंड इज relational operator. These operators are used to compare two values. दो values को compare करने के लिए हम relational operators का use करते हैं and the result of the comparison is either true, that is 1, or false, that is true, 0. Operators are less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, not equal to and equal to. These are the operators. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इन पे ऑपरेशंस देखें तो हैश इंक्लूड स्टीडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वॉइड मेन, इंट ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3, सी डी ई एफ जी एच वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं। सी इज इक्वल टू ए इज़ ग्रेटर देन बी। क्या ए बी से ग्रेटर है? तो नहीं, मीन्स कि फॉल्स हो गया स्टेटमेंट और आंसर आएगा 0। जहाँ पे स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो रिज़ल्ट 0 मिलेगा एंड अगर हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा तो रिज़ल्ट 1 मिलेगा। डी इज़ इक्वल टू ए इज़ लेस देन बी, मीन्स ए की वैल्यू बी से स्मॉलर है, दैट इज़ ट्रू, तो 1। ई ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, दैट इज़ फॉल्स, तो आंसर इज़ 0। एफ ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, दैट इज़ ट्रू। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, दैट इज़ ट्रू, तो 1 आंसर। a is equal to b, that is false, तो 0 आंसर। मीन्स कि जहाँ पे भी रिज़ल्ट आपको ट्रू मिलेगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, जहाँ पे फॉल्स मिलेगा उसकी वैल्यू 0 होगी। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स इस तरीके से वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन रिलेशनल एक्सप्रेशंस। दो रिलेशनल एक्सप्रेशन या दो से अधिक रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं और रिजल्ट विल बी ट्रू इफ़ द एक्सप्रेशन इज़ ट्रू एंड रिजल्ट विल बी फॉल्स इफ़ द expression is false. So these are the symbols, logical and logical or. These are the two symbols for logical or and logical not. If logical and operations हम करते हैं तो result will be, if input will be, both the input will be 1, the answer will be 1, otherwise 0. In OR operation, in logical OR, if both the input will be 1, the result will be 1. If one of the input will be 1, result will be 1, otherwise false. In logical NOT, just 0, means 0 का reverse 1, NOT operation 1 का NOT 0, result आ जाएगा। अगर एक एग्जाम्पल के रूप में देखें हम तो write a program using logical operators. Int m is equal to 40, n is equal to 20, o is, that is o variable, o is 20, p is 30. If m is greater than n and m is not equal to 0, this is AND operator, means कि दोनों अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी रिजल्ट ट्रू मिलेगा हमें। तो m is greater than n, m is greater than n, yes, m is not equal to 0, m is not equal to o, that is also true, and the result will be conditions are true. If o is greater than p, o is greater than p, that is false,
or p is not equal to 20, p is not equal to 20, that will be true and that will be false. Then the result will be true because this is OR operation. The result will be print if only one condition is true printed. Third one is if not of m is greater than n and m is not equal to 0. M is greater than n, m is greater than n and m is not equal to O. That is true, but the result will be converted to false because there is not operation. So the result will be else operation, and else will print conditions are true but status is inverted as false. So the output will be like this. So in logical operators, the output will be true if the condition is true, output will be false if the condition is false. Fourth one is conditional operator. Conditional operator take three operands and consist of symbols. These are the two symbols in conditional operator: question mark and colon. Conditional operator is used for decision making in C and it is also known as the ternary operator. Syntax of conditional operator is expression 1 question mark, expression 2 colon, expression 3 semicolon. Actually this expression 1 is condition, expression 2 is the true statement and expression 3 is false statement. Where expression 1 is condition, expression 2 is the statement to be executed if the condition is true. This will be executed if this condition is true and this will be executed if this condition is false. So for example, write a program to find whether a number is even or odd using conditional operator. There is int a variable, print enter the value of a, scanf %d ampersand a mod 2 is equal to 0. If this condition is true, then it will print even number. If this condition is false, then it will print odd. So this is the conditional operator. Next question is write a program to find whether a number is negative or positive. So int a is a variable, print enter the number, scanf %d ampersand a. Using conditional operator, if a is greater than 0 or equal to 0, is this condition is true, then it will print positive, otherwise it will print negative. So this is the conditional operator. Next is bitwise operator. Bitwise operator actually used to manipulate individual bits in an integer quantity. बिटवाइज ऑपरेटर बिट पे काम करता है, जितने भी नंबर ऑफ बिट्स होते हैं उन पे ये ऑपरेशंस परफॉर्म करता है. द ऑपरेटर्स इन बिटवाइज आर एंड, दैट इज बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज XOR, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट एंड कॉम्प्लीमेंट. These are the operators, and the use of operators are if there is A and B, then when both the inputs are true, then the result will be true only. In OR operation, bitwise OR, one of the input is true, the result will be true. In XOR operation, if inputs are different, result will be true only. And in complement, there is not operation performed in this. If input is 0, result will be 1. Input is 1, result will be 0. So for example, A is equal to 5, B is equal to 6. A का जो बाइनरी फॉर्म होगा बिट्स में वो होगा 101 and to converted it into 8-bit form, this is the 8-bit form of 5. B को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, that is 110 and this is the 8-bit form of 6. A and B ऑपरेशंस करेंगे अगर हम A और B पे, तो वहाँ पे ट्रू माना जाएगा जहाँ पे
दोनों इनपुट हाई होंगे। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पे इनपुट हाई है, बाकी सब जगह लो हैं। तो ये थर्ड वाला इनपुट हाई हो जाएगा, बाकी सारे लो। इसका जो डेसिमल फॉर्म होगा वो 4 माना जाएगा। ए एक्स और बी करेंगे तो अगर डिफरेंट इनपुट हैं तो आउटपुट हाई होगा। डिफरेंट इनपुट आउटपुट हाई, डिफरेंट इनपुट आउटपुट इज़ हाई, सेम इनपुट देन इट विल बी 0। तो डेसिमल फॉर्म इसका 3 होगा। ए और बी ऑपरेशन, ए और बी में अगर कोई भी एक इनपुट हाई होगा तो रिजल्ट विल बी हाई। तो एक हाई है तो 1, यहाँ पे 1 है तो ये भी 1 एंड दिस विल ऑल्सो बी 1। सो दिस इज द बाइनरी फॉर्म ऑफ 7. Complement of A is actually, the formula is minus of n plus 1. Minus of A plus 1, that is A की वैल्यू 5 है, तो 5 plus 1 is 6, then minus 6. Minus of B, B की वैल्यू 6 है, तो 6 plus 1 that is 7, minus 7. Complement of B. शिफ्टिंग की बात करें तो A अगर राइट शिफ्ट 1 पोजीशन है, A की वैल्यू हमारी, ए की वैल्यू 10 है, 1 पोजीशन शिफ्ट करना है, तो ए की वैल्यू 10 है, 1 0 1 0। इसे 8 बिट फॉर्म में लिखेंगे तो 4 0 आगे बढ़ा देंगे। 1 बिट शिफ्ट करेंगे तो ये चला जाएगा गार्बेज में। इसके बाद सब 1 बिट शिफ्ट हो जाएंगे, बाकी सारे 0, और जो ब्लैंक पोजीशन होगी वहाँ पे हम 0 इंसर्ट कर देंगे। तो आंसर विल बी 1 0 1, दैट इज़ 5. ए राइट शिफ्ट बाय 1 पोजीशन, अगर सॉरी लेफ़्ट शिफ्ट बाय 1 पोजीशन, अगर लेफ़्ट शिफ्ट करें तो 1 0 1 0 को लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो ये बिट यहाँ आएगा, ये बिट यहाँ, ये यहाँ एंड ये यहाँ, ये ब्लैंक पोजीशन बचेगी, यहाँ पे हम 0 इंसर्ट करेंगे। तो आंसर विल बी 1 2 4 8 16, दैट इज़ 20. आंसर विल बी 20. सो ये एग्जाम्पल था बिटवाइज ऑपरेटर का। आगे नेक्स्ट इज़ द स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर की बात करें तो 3 ऑपरेटर्स इसमें आते हैं, कॉमा ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर एंड एस्टेरिक. कॉमा ऑपरेटर इज़ यूज टू लिंक रिलेटेड एक्सप्रेशंस. 2 या 2 से अधिक एक्सप्रेशन को अगर हमें लिंक करना है तो हम कॉमा का यूज़ करते हैं। एंड कॉमा की जो प्रेसिडेंस होती है वो सबसे लीस्ट होती है. सेकेंड इज साइज ऑफ ऑपरेटर. इट इज़ अ यूनरी ऑपरेटर used in finding the size of the data type. So for example array, structure, float, character. तो अगर हमें साइज़ ऑफ ऑपरेटर, किसी भी ऑपरेटर की साइज़ निकालनी है तो हम जस्ट लिखेंगे साइज़ ऑफ ब्रैकेट में उस डेटा टाइप का नाम या वेरिएबल का नाम, तो हमें उस डेटा टाइप का साइज़ पता चल जाएगा. एक्सटेरिक सिंबल, दिस इज़ यूज्ड एज अ पॉइंटर टू वेरिएबल. एक्चुअली में एस्टेरिक ऑपरेटर पॉइंटर की तरह काम करता है. फॉर एग्जांपल मेन इंट q कॉमा एक्सटेरिक a, दैट इज़ पॉइंटर वेरिएबल एंड दिस इज़ नॉर्मल वेरिएबल. Pointer variable is a special variable which is used to hold the address of another variable. So q is equal to 10. q की वैल्यू 10 है एंड a इज़ इक्वल टू एड्रेस ऑफ q. a में q का एड्रेस स्टोर किया जाएगा. जब हम प्रिंट करेंगे एस्टेरिक ऑफ a, तो a की जो वैल्यू, a ने जिसका एड्रेस स्टोर किया है उसकी वैल्यू मीन्स कि q की वैल्यू दैट इज़ 10, यहाँ पे 10 प्रिंट कर देगा. a की वैल्यू अगर प्रिंट कराएंगे तो a की जो वैल्यू होगी मीन्स उसने एड्रेस q का स्टोर किया. जो भी एड्रेस होगा q का, सपोज 2000 तो 2000 एड्रेस विल बी शोन. एम्परसेंट a का जो एड्रेस होगा, a का खुद का कोई एड्रेस होगा, सपोज 2010, तो ये प्रिंट कर देगा. एंड q की वैल्यू हमें पता है, q की वैल्यू 10 है, तो ये प्रिंट कर देगा. पॉइंटर वेरिएबल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल विच इज़ यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल.
क्यू एक नॉर्मल वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है। एक ए इज़ पॉइंटर वेरिएबल विच इज़ यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। सपोज इसका एड्रेस 1200 तो इट विल स्टोर द एड्रेस ऑफ क्यू एंड इसका अपना खुद का एक एड्रेस होगा। तो इस तरीके से पॉइंटर काम करता है। नेक्स्ट इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। These operators are used to increment and decrement the value of variable by 1। एक्चुअली में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स ऐसे वेरिएबल है जो कि उसकी वेरिएबल की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दीज आर यूनरी ऑपरेटर्स। ये बेसिकली यूनरी होते हैं, सिंगल वेरिएबल्स होते हैं जिनके साथ ऑपरेशन किया जाता है। सिंटेक्स होता है, तो अगर प्री डिक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट है मीन्स कि पहले ऑपरेटर का यूज़ होगा फिर वेरिएबल। पोस्ट है तो मीन्स वेरिएबल पहले आएगा, ऑपरेटर्स बाद में। फॉर एग्जांपल प्लस प्लस ए मीन्स ऑपरेटर पहले आ रहा है, वेरिएबल बाद में, तो ये प्री इंक्रीमेंट है। माइनस माइनस ए ऑपरेटर पहले है, वेरिएबल बाद में, तो प्री डिक्रीमेंट। ऐसे ही पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। एक्चुअल में प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है कि दिस ऑपरेटर इज़ यूज विद अ वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन। द वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड बाय 1 एंड देन द एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड यूजिंग द न्यू वैल्यू ऑफ वेरिएबल। एक्चुअली प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले जो भी वेरिएबल होता है उसके साथ एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जाता है एंड देन उस वैल्यू को इवेलुएट किया जाता है यूजिंग द न्यू वैल्यू। जो भी हमारी न्यू वैल्यू आती है उससे इवैल्यूएशन किया जाता है। बट पोस्ट में क्या होता है कि सबसे पहले जो भी पुरानी वैल्यू होती है उसके साथ ऑपरेशन कर लिया जाता है इवैल्यूएशन एंड देन वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल इंट ए इज इक्वल टू 10, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू बी और सी ए प्लस प्लस है मीन्स पोस्ट इंक्रीमेंट, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 10 होगी। प्रिंट एफ ए की वैल्यू आफ्टर दिस इवैल्यूएशन ए की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगी तो ए की वैल्यू 11 हो जाएगी। प्लस प्लस ए मीन्स की प्री इंक्रीमेंट है तो पहले ही हम इंक्रीमेंट कर देंगे, 11 था यहाँ पे 12 हो जाएगी वैल्यू, ए की वैल्यू 12 प्रिंट करेगा। बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, तो बी की वैल्यू में ए प्लस प्लस होगा तो ए की वैल्यू 12 है, 12 होगी एंड ए की वैल्यू आफ्टर दिस इवैल्यूएशन ए की वैल्यू 13 हो जाएगी। सी इज इक्वल टू प्लस प्लस है यानी कि पहले ही इंक्रीमेंट करना है तो ए की वैल्यू 13 है, सी की वैल्यू 14 हो जाएगी, ए की भी वैल्यू 14। आंसर विल बी 11 12 12 14, 11 12 12 14। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एंट ए बी, ए की वैल्यू 10 है, बी इज इक्वल टू माइनस माइनस ए, तो प्री डिक्रीमेंट है तो बी की वैल्यू ए की वैल्यू जो होगी उसमें डिक्रीमेंट हो जाएगा, बी की वैल्यू हो जाएगी 9। ए और बी की वैल्यू दोनों की वैल्यू 9 आ जाएगी। अगर पोस्ट की बात करें तो ए बी है, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू ए प्लस प्लस है, तो बी की वैल्यू तो पुरानी वैल्यू लेगा क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो बी की वैल्यू 10 होगी, ए की वैल्यू आपकी 11 हो जाएगी आफ्टर दिस इवैल्यूएशन। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर।